Dear students, let us start frog, which is studied in detail. It is written in section A under class amphibia. So we will study about Rana tigrina in detail. Rana tigrina is commonly called as bullfrog of India. It is found in and near freshwater bodies. It has very large croaking sound, so termed as bullfrog of India, and commonly seen during rainy season. Its systematic position: phylum Chordata. All chordate features, notochord, dorsal hollow nerve cord, gill slits are present in it. So it comes under phylum Chordata. Subphylum Vertebrata, because notochord is replaced by vertebral column. Division Gnathostomata, because mouth are bounded by jaws, so it comes under division Gnathostomata. Superclass Tetrapoda, due to presence of two pairs of limbs. Class Amphibia, because it leads amphibious life, can live on land as well as in water, and exoskeleton is absent. Subclass is Anura. A means absent. Tail is absent in it, so it is placed in subclass Anura. And hind limbs are longer than forelimbs. Order है इसका Phaneroglossa. Phanero is always glossa. These terms are always related with tongue. So a tongue is present in frog. It comes under order Phaneroglossa. Type genus Rana है and species is Tigrina. This is about systematic position of frog. Habit and habitat. Amphibious animal बताया है पहले भी, can live in water as well as on land. Found near freshwater bodies. Commonly seen during rainy season. Active during daytime, so it is called as diurnal. Swims in water and lives on land, and webs are present in between toes which help in swimming. Carnivorous in feeding habits. What is the meaning of carnivorous? Takes insects, spider, worms, etc. And prey is captured with the help of anteriorly fixed and posteriorly free sticky tongue. टंग का क्या फीचर है? एंटीरियरली फिक्स्ड है और पोस्टीरियरली फ्री है, ताकि ये इंसेक्ट्स वगैरह पे अपनी टंग को फेंक सकता है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये. शोज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप. रिप्रोडक्शन कैसी है? यूनिसेक्सुअल. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है इसमें. मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड एक्सटर्नली. And copulation occurs in water. Sex cells are released. Female oviparous है और eggs को ले करती है spawn में. एक gelatinous moss में ले करती है, उसको कहते हैं spawn. SPAWN, spawn नहीं, SPAWN, spawn. Development indirect है. इसमें एक tadpole like larva होता है, इसलिए indirect development कहते हैं. ये प्रोटेक्टिव कलरेशन भी शो करता है. इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को बोलते हैं मेटाक्रोसिस. सो ये हैबिट और हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग. बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है ये. आप डायग्राम में देखो, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, स्ट्रीमलाइंड है. स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्यों है? रेसिस्टेंस को रिड्यूस करती है ये. 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 से 8 सेंटीमीटर वाइड है. कलर इसका स्पॉटेड ऑलिव ग्रीन डॉर्सल साइड पे, पेल येलो कलर वेंट्रल साइड पे. स्किन मॉइस्ट रहती है इसकी, स्लिपरी रहती है म्यूकस के कारण. कुटेनियस ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं. बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है. फ्रॉग के दो पार्ट्स हैं. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. नेक नहीं होती इसमें, नेक इज एब्सेंट. तो हेड और ट्रंक में, हेड में कौन कौन से रीजन्स है? हेड आगे आप देख रहे हो फ्लैट है, ट्रायंगुलर है.
produced into a conical snout and has following structures. Mouth, हेड के ऊपर क्या है, माउथ प्रेजेंट है. माउथ टर्मिनल सेमी ओवल है और वाइड भी है, कैप्चर को प्रे करने में हेल्पफुल है. बाउंडेड बाय ट्रू जॉस, इमूवेबल स्किन फोल्ड्स होती हैं इसके ऊपर. और एक नॉस्ट्रल्स का पेयर है, वन पेयर ऑफ स्मॉल सर्कुलर नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्नाउट. ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है नॉस्ट्रल्स. आइज आप देख रहे हैं, लार्ज साइज्ड, स्फेरिकल, located on dorsolateral side of head and bulging outward, can be kept into orbits. Each eye has 3 eyelids. सबसे ऊपर वाली अपर आईलिड इमूवेबल, फिर सबसे लोअर आईलिड स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. और थर्ड आईलिड, जो थर्ड आईलिड है वो फ्रीली मूवेबल है, उसको कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. वो कॉर्निया को डस्ट से प्रोटेक्ट करती है लैंड पे, और पॉन्ड में है तो मड से प्रोटेक्ट करती है, हाइबरनेशन में भी. ये आइज़ हैं मोनोकुलर विज़न शो करती हैं. मोनोकुलर विज़न, हर एक आई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अपना फोकस कर सकती है, दैट इज़ टर्म्ड एज मोनोकुलर विज़न. 2 आइज़ हैं, दोनों तरफ की डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज मोनोकुलर विज़न. वी हैव बाइनोकुलर विज़न. ह्यूमन बींग्स का कैसा है, बाइनोकुलर विज़न. और क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंटीरियर रीजन में हेड में ब्रो स्पॉट. ब्रो स्पॉट कैसा है, स्मॉल सर्कुलर स्पॉट है, मिड डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है. ये थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है, वेस्टिजियल आई को. ये लाइट रेडिएशंस के लिए सेंसिटिव है. और क्या स्ट्रक्चर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम और टिम्पैना, स्मॉल सर्कुलर पिगमेंटेड मेम्ब्रेनस फोल्ड है प्रेजेंट बिहाइंड द आई. ये टिम्पैनम क्या शो करता है, साउंड वेव्स को रिसीव करता है ये. और क्या स्ट्रक्चर बताई हुई है, वोकल सैक्स. ये वोकल सैक्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर, वेंट्रोलेटरल साइड में, थ्रॉट में, बट केवल मेल फ्रॉग्स में प्रेजेंट है. ये रेजोनेटर्स का काम करती हैं और क्रोकिंग साउंड की पिच को इंक्रीज करती हैं. तो मेल्स की साउंड ज़्यादा लाउड होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक्स इन मेल्स. दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन हेड रीजन, कॉनिकल हेड. सेकेंड पार्ट है ट्रंक. ट्रंक के ऊपर एक सैक्रल हैम्प होती है डॉर्सल साइड पे, और वेंट्रली थोरेक्स में डिवाइडेड है और एब्डोमेन में डिवाइडेड है. और ट्रंक की स्किन पे डर्मल प्लीकी प्रेजेंट है, स्किन फोल्ड्स. और ट्रंक के ऊपर 2 लिम्ब्स के पेयर्स प्रेजेंट हैं, हाँ, 4 लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स. 4 लिम्ब्स शॉर्टर है, हाइंड लिम्ब्स लॉन्गर है. 4 लिम्ब स्टाउटर भी हैं, अपर आर्म, फोर आर्म और हैंड में डिवाइड होते हुए. हैंड में केवल 4 डिजिट्स हैं, पोलेक्स एब्सेंट होता है, थंब है ना जो हैंड में, वो मेल्स में नहीं होता. वेंट्रल साइड ऑफ फर्स्ट फिंगर हैज़ अ copulatory pad in males which becomes enlarged during breeding season. ये जो copulatory pad है मेल्स में, वो फीमेल को ग्रिप करने में हेल्पफुल है during एम्प्लेक्सिस. एंड forelimbs help in directional orientation during locomotion और शॉक एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल है. हाइंड लिम्ब्स, हाइंड लिम्ब्स कैसे हैं, लॉन्गर हैं साइज में, ट्रंक के पोस्टीरियर पार्ट से अराइज करते हैं. हाइंड लिम्ब थाई, शैंक और फुट को शो करते हैं. फुट में 5 टोज़ हैं लेकिन नेल्स और क्लॉज नहीं होते, और टोज़ के बीच में वेब्स प्रेजेंट हैं विच हेल्प इन स्विमिंग. और जब रेस्ट पे होता है तो ये जेड की शेप में क्लोज हो जाता है हाइंड लिम्ब, और लीपिंग में भी हेल्पफुल है जग्स के साथ. और हाइंड मोस्ट रीजन में क्या है, क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट है, जो कि कॉमन आउटलेट है फीसिस के लिए, यूरिन के लिए, सेक्स सेल्स के लिए. दिस इज अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग. नाउ let us talk about skin of frog. You are seeing the diagram of skin. Skin is thin, moist and slippery. और स्किन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस में और डर्मिस में.
एपिडर्मिस आउटर थिनर और स्ट्रेटिफाइड, एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। लोअर मोस्ट लेयर स्किन की एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहलाती है, दैट इज मेड अप ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये माइटोसिस से डिवाइड करती है, न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती है और ऊपर जाते जाते वो फ्लैट भी कर जाते हैं और कैरेटिनाइज कर जाते हैं, ट्रांजिशन जोन फॉर्म करते हैं। अपर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की स्ट्रेटम कॉर्नियम है, वो किसकी बनी हुई है? फ्लैट कैरेटिनाइज्ड न्यूक्लिएटेड सेल्स की, और शेड भी होती रहती है अपर मोस्ट लेयर, दैट इज टर्म्ड एज मोल्टिंग। सेकेंड पार्ट है स्किन का डर्मिस, यू आर सीइंग इन डायग्राम। डर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम आउटर है, स्पॉन्जी है, एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ब्लड कैपिलरीज हैं, लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ साइनसेस हैं, पिगमेंट सेल्स हैं। पिगमेंट सेल्स को क्रोमेटोफोर्स बोला है। कुछ म्यूकस ग्लैंड्स हैं उसमें, कुछ पॉइजन ग्लैंड भी हैं। क्रोमेटोफोर्स जो है ना इसमें स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम में पिगमेंट सेल्स हैं, ये 3 तरह के हैं, मिलेनोफोर्स, लिपोफोर्स, ग्वेनोफोर्स, अलग अलग शेड देते हुए। एंड ये क्या करते हैं? हेल्प इन कलर चेंज इन फ्रॉग। ये कलर चेंज फीचर क्या कहलाता है? मेटाक्रॉसिस। ये मेटाक्रॉसिस एनिमल को एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड कर देता है। दिस फीचर इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। और बॉडी का कलर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और लाइट पे भी डिपेंड करता है। लो टेम्परेचर और डार्कनेस स्किन को डार्क कर देते हैं, एंड ड्राई एंड ब्राइट एनवायरनमेंट स्किन को लाइट कर देता है। और एड्रीनल मेडुला एंड intermediate lobe of pituitary cause dispersion of pigment granules and darken the body। और डर्मिस में कुटेनियस ग्लैंड्स भी हैं स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम में, जो कि सेकुलर मीरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये क्या करती हैं? एक्टोडर्मल है ओरिजिन में और म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जिससे कि बॉडी स्लिपरी हो जाती है। दूसरा पार्ट डर्मिस का आप नीचे की तरफ देख रहे हो, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, कोलेजन फाइबर्स हैं इसमें और ब्लड वेसल्स हैं। दिस इज अबाउट स्किन, थिन, मॉइस्ट और स्लिपरी, एपिडर्मिस और डर्मिस की बनी हुई। ओके स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम कल पढ़ेंगे। स्किन के फंक्शंस क्या क्या हैं? प्रोटेक्शन देती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, लोकोमोशन में हेल्पफुल है, टीथ की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, डर्मल बोन्स को कवर करती है, शेप प्रोवाइड करती है, वोकल सेक्स और एम्प्लेक्सरी पैड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्पफुल है, क्योंकि ये मेल्स में ही होते हैं। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना फ्रॉग में, सेंसेशन फाइबर्स प्रेजेंट है तो सेंसरी तो होगी ही। प्रोटेक्टिव कलरेशन मेटाक्रोसिस शो करती है और हैचिंग में भी हेल्पफुल है। तो स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन फ्रॉग। सिलोम बॉडी कैविटी है फ्रॉग के अंदर, सिलोम कंटेन्स इंटरनल ऑर्गन्स और थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन पेरिटोनियम दिस सिलोम को लाइन करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी लाइन करती है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सारे मिजेंट्रीज में सस्पेंडेड होते हैं। सिलोम सिलोमिक फ्लूइड से फिल्ड होती है, लुब्रिकेट करती है विसरल को, विसरल मास को फ्रिक्शन से भी बचाती है। हार्ट किस में एनक्लोज्ड है? पेरिकार्डियल कैविटी में एनक्लोज्ड है। और विसरल मास किस में एनक्लोज्ड है? सारा पेरी विसरल कैविटी में एनक्लोज्ड है। सो सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन फ्रॉग। दिस इज अबाउट today's lecture. Thank you.